Hello everyone, I'm Justina Perez and I welcome you all to the discussion of 20 GK questions from CAT perspective. इस वीडियो में हम ऐसे questions discuss करेंगे आज ही के current affairs से. So if you have not watched my previous video, please do watch that and then come and watch this one. Let's start with the first question of today. Who were the recipients of the 2025 Nobel Prize in Economic Sciences? So what's the answer? The answer is Joel, Philip and Peter. So I remember by their first names because their surnames can be pretty confusing. So you also can remember something like this and it's going to help you in marking the right answer. Let's see the second question. For what contribution was Joel Mokyr awarded the Nobel Prize in 2025 for economic? So यहाँ पे हम देखते हैं he kind of got that relation of historical models, okay, historical evidence models with regard to कैसे technology को स्टडी करके इट लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ. सो यस, द आंसर इज बी. Question number 3. What theory did Philip Aghion and Peter Howitt develop that led to the Nobel recognition? It's a theory of creative destruction and sustained growth. Yes. जहाँ पे बताया again innovation leads to the cycle of innovation leads to growth. Yes, the answer is B. Question number 4. Which of the following is not a category of the original Nobel Prize established in Alfred Nobel's will? तो हम देखते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लिटरेचर तो थे बट इकोनॉमिक्स यहाँ पे नहीं था. तो यस, द आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 5. कौन सा मेटल का मेडल नोबेल प्राइज में दिया जाता है? द आंसर इज गोल्ड. एंड अगर आपके ऑप्शन में होता है ग्रीन गोल्ड, दैट वुड बी अ मोर appropriate or the accurate answer. So answer to the question is A. Green gold is like an alloy of gold and silver and recyclable gold भी कहते हैं इसको. So yes, the answer is A. Question number 6. What is the approximate monetary value of the Nobel Prize? तो यहाँ पे हम देखते हैं it is 11 million Swedish krona, which is approximately 10.25 crore rupees. Let's proceed to the next question. क्वेश्चन है विच कंट्री लीडर्स ने साइन किया था गाजा सीज फायर डिक्लेरेशन एज गारंटर्स? तो यहाँ पे आंसर है यूएस, इजिप्ट, कतर एंड टर्की. आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 8. शर्मल शेख कहाँ पे लोकेटेड है? सो वी नो इट इज लोकेटेड इन इजिप्ट. शर्मल शेख जहां पे ये साइन हुआ था द पीस समिट, ये है द गल्फ ऑफ अकाबा में. तो आंसर इसका है बी. Question number 9. Which organization collaborated with UNESCO to develop the virtual museum of stolen cultural objects? और इसका आंसर है इंटरपोल. तो this is going to help UNESCO to ensure कि वापस से हम जो खोए हुए ऑब्जेक्ट्स हैं, मॉन्यूमेंट, स्ट्रक्चर्स जो भी है, ये वापस उस होम कंट्री में मिल सके. Which country financially supports the virtual museum of stolen objects? तो आंसर इसका है Kingdom of Saudi Arabia as seen in today's news. Option B. Question number 11. Bureau of Indian Standards. आज है World Standards Day, October 14. तो हम देखते हैं कि इंडियन जो बॉडी है that is responsible for this is Bureau of Indian Standards. 1987 में बनी थी but it has its powers in the 2016 Act. तो इसमें बोला किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स. रिमेंबर, ओके, नॉट कॉमर्स बट कंज्यूमर अफेयर्स. देयरफॉर आंसर इज सी. Question number 12. According to the vital statistics of India based on the civil registration system, which state reported the highest sex ratio at birth? सबसे ज्यादा जो sex ratio है more than 1000, okay, कितने females per 1000 males? That is अरुणाचल प्रदेश. और सबसे अगर लोवेस्ट पूछा गया है देन योर आंसर इज झारखंड. इज दैट क्लियर? लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना? ये चाहते हैं कि रूफटॉप सोलर पैनल्स लगाएं फॉर हाउस होल्ड्स. देयरफॉर आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी. क्वेश्चन नंबर 14. टारगेट ईयर क्या है ऑफ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना? कितने करोड़ हाउस होल्ड्स? 1 करोड़ हाउस होल्ड्स, बट द टारगेट ईयर इज 2027 तक, फाइनेंशियल 2027 तक. देयरफॉर आंसर टू द क्वेश्चन इज सी. क्वेश्चन नंबर 15. विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना? द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. ठीक है, तो आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी.
क्वेश्चन नंबर 16, अंडर पीएम सूर्य अगर मुफ्त बिजली हो ना, कितने यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ मिलेंगे टू द बेनिफिशियरी हाउस होल्ड? द आंसर इज 300 यूनिट्स, 300 यूनिट। याद रखना कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है कि इट शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये जो प्रॉपर लोकेशन होना चाहिए दैट दे कैन इंस्टॉल द रूफटॉप सोलर पैनल्स, राइट, कोई दूसरा सब्सिडी नहीं मिलना चाहिए। सो ऑल ऑफ दीज एलिजिबिलिटीज आर ऑल्सो मेंशन्ड। Next is question number 17. Under the scheme, only the solar modules that are entirely manufactured in India eligible for subsidy. उस मॉडल को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं DCR compliant models, and therefore answer to the question is B. क्वेश्चन नंबर 18, जो क्लैशेस हुए पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ये कौन से बाउंड्री में हुए थे? तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन है इसको कहते हैं ड्यूरिन लाइन, जो बना था 1893 में, एंड देयरफॉर आंसर टू द क्वेश्चन इज बी। Question number 19. The Taliban stated that their October 11-12 operations were in retaliation to Pakistan's earlier airstrikes. मतलब क्वेश्चन पूछा है कि पाकिस्तान ने कहां पे इनके स्ट्राइक किए थे? The answer to this is Kabul and Paktika. Answer is B. And the last question of the day. For which summit hosted by India has PM invited the Canadian Prime Minister Mark Carney? इन्होंने इनवाइट किया है कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट, जो फरवरी में होगा अगले साल, यानी कि 2026 में, एंड इट इज सो दैट ही इज गोइंग टू कम टू इंडिया. सो दैट इज ऑल विद रिगार्ड टू आवर 20 GK क्वेश्चंस. आई होप यू हैव गॉट ऑल ऑफ देम करेक्ट. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.